Assalamu alaikum students. Today we will study about the next cellular organelle that is called as the mitochondria. This is called as the mitochondria. Mitochondria एक plural term है. अगर single cellular organelle हो तो then this is called as the mitochondrion. लेकिन अगर plural में हम इसको mitochondria कहते हैं. Mitochondria are important organelles which are present in all the eukaryotic cells. As these are the membrane bounded organelles, so these are only found in the eukaryotic cell. Mitochondria are called as the powerhouse of the cell. कि ये cell का powerhouse कहलाते हैं because they provide cell with the energy. ये सेल को जो है सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द सेल टू परफॉर्म द डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड दिस एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द ATP as they are the source of the energy, so that these are called as the powerhouse of the cell. Under a simple microscope they appear to be very small, rod shaped, or they may be the filament shape, or they may be also appear in the form of the vesicles. But under the electron microscope we can see their complex structure. As here in the diagram it is shown that each mitochondrion is bounded by a double membrane. This is the outer membrane. Outer membrane is smooth, ये throughout जो है ये smooth है, और ये वाली जो है अंदर this is called as the inner membrane, but the inner membrane is not smooth like the outer membrane. This inner membrane has the various इनफोल्ड्स. ये इस तरह से इसमें जो है ये अंदर की तरफ जो है इसमें फोल्डिंग्स डेवलप हुई हैं जिनको हम इनफोल्ड्स का नाम देते हैं, और ये इनफोल्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तक जो है वो एक्सटेंड करती हैं. तो इंटरनली दिस चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. ये सारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन जिसकी ये इनफोल्ड्स जो हैं हमें नज़र आ रही हैं. These infolds are called as the cristae. इनको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं. और ये माइटोकॉन्ड्रियन की जो मेम्ब्रेन है, whether it is the outer membrane or as well as the inner membrane, these have the same structure as the cellular other membranes. उनकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम वही हैं जो कि दूसरी सेलुलर मेम्ब्रेन्स की होती हैं. Mitochondrial membranes have the same structure as that of the plasma membrane, and in addition to this mitochondria also contain the ribosomes as well as the DNA. तो presence of ribosomes क्या शो करती है कि ribosomes present है, तो it means कि some proteins are also synthesized within the mitochondria. Moreover, the presence of the DNA shows that it is a self-replicating organelle. सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली मीन कि ये एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनेली है जो कि खुद अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, खुद रेप्लिकेट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दो इसमें ये मेम्ब्रेन्स होंगी, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद ये सारा कंपोनेंट जो है इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इट कंटेन्स द वेरियस टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक salts. These help in the various metabolic processes, especially that takes place in the respiration. Respiration का first part that is called as the glycolysis वो साइटोप्लाज्म में take place करता है, जबकि उसका बाकी part जो है which is called as the Krebs cycle वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर take place करता है. तो Krebs cycle को ड्राइव करने के लिए जितने भी एंजाइम कोएंजाइम चाहिए होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स, वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. फूड की ब्रेकडाउन होती है, उसके रिजल्ट के तौर पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ द ATP, एंड दिस ATP इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज़. The size of the mitochondria as well as the number of the mitochondria within a cell is variable in the different cells. वो वाले सेल जो कि ज़्यादा एक्टिवली
एक्टिव होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रियान ज़्यादा होता है, जबकि जो सेल ज़्यादा एक्टिव नहीं होते उनमें नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रियान कम होता है, उनको जो है कम एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। व्हेन द एनर्जी इज़ यूटिलाइज दैन दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू द एडी चेंज हो जाती है, और फिर दिस एडीपी इज़ अगेन रीजनरेटेड टू फॉर्म द एटीपी, और माइटोकॉन्ड्रियान उस एडीपी को दोबारा फिर एटीपी में चेंज करता है एज अ रिजल्ट ऑफ द Krebs cycle, so that as they provide the cell with the energy, hence they are called as the powerhouse of the cell. इनको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। मॉड्यूल खत्म हो गया। next cellular organelles which we are going to study, that is the plastids. Plastids क्या हैं? Plastids actually membrane bounded organelles which are present in the eukaryotic cells. These are the pigment containing bodies. कि एक्चुअली प्लास्टिड्स क्या हैं? ये ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि विच प्ले देयर रोल इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एज वेल एज दे इम्पार्ट्स द डिफरेंट कलर्स टू द डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स। तो सो दैट द प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। सिर्फ प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि एनिमल जो हैं दीज आर द हेटरोट्रॉफिक और ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। There are the three main types of the plastids. First one, that is the most important type, which is called as the chloroplast. सबसे important plastid जो हैं वो हमारे पास chloroplast हैं, और chloroplast को हम क्यों chloroplast कहते हैं? As they contain the photosynthetic pigment which is of the green color, that is called as the chloroplast. कि इनमें chloroplast pigment present होता है, तो so that these are called as the chloroplast. तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स के तौर पे प्रेजेंट होते हैं। और ग्रीन पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड एज द क्लोरोफिल एक्चुअली हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। लेकिन कैसे हेल्प करता है? कि फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट यूटिलाइज होती है, इसको एब्जॉर्ब जो है वो एक्चुअली क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, एंड देन इट इज़ यूटिलाइज टू मैन्युफैक्चर द फूड एज अ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और उसके रिजल्ट के तौर पे प्लांट्स में फूड या कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बनते हैं। क्लोरोफिल जो है वो एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एंड इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड, रेड ब्लड सेल्स। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? कि इट कैरी द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द हीमोग्लोबिन, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो क्या है? कि क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे मैग्नीशियम की बजाय आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो बाकी स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन सिमिलर है। क्लोरोप्लास्ट आर वेरिएबल इन देयर शेप एज वेल एज इन देयर साइज, देयर डायमीटर इज अबाउट 4 to 6 micron. Under light microscope they can be seen as heterogeneous structures, यानी homogeneous नहीं बल्कि heterogeneous structures के तौर पे अपीयर होते हैं। and we see under the light microscope, compound microscope में अगर हम इनको देखें तो इनके अंदर जो है वो छोटे छोटे हमें ग्रैन्यूल्स नज़र आती हैं, यानी अगर प्लास्टिड को आप देखें तो उसके अंदर छोटे छोटे हमें सिर्फ दाने से जो है वो नज़र आएंगे इसके अंदर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखें तो फिर हमें इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। उसमें हम देखते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो डबल मेम्ब्रेन की एक कवरिंग या एक एनवेलप जो है वो प्रेजेंट है, और उसके बाद सारा इसमें ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है दिस इज़ कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। ठीक है, पूरा अंदर जो है ये सारा ग्राउंड सब्सटेंस जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और इस स्टोमा के अंदर जो हैं स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द थाइलाकाइड। ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एट इंटरवल्स, दीज आर कॉल्ड एज द थाइलाकाइड। इनको हम थाइलाकाइड्स का नाम देते हैं। डबल मेम्ब्रेन जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट है, और मोस्टली इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द स्टोमा, और स्टोमा में थाइलाकाइड आर प्रेजेंट। इसके अलावा इट मे आल्सो कंटेन्स द सम राइबोसोम्स एंड सम अमाउंट ऑफ द DNA।
ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट इसमें डीएनए की और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और एक्चुअली स्ट्रोमा जो है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का क्या मतलब कि जो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है या कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है, वो एक्चुअली यहाँ पे ही कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। और उसके अलावा इसमें राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट सो दैट द सर्टेन टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट, ये स्ट्रोमा में। बाकी इसके बाद क्या रह गया, थाइलाकाइड। थाइलाकाइड जो है वो एक्चुअली क्या है, दीज आर द फ्लैटन्ड वेजिकल्स। ठीक है, ये फ्लैटन्ड वेजिकल्स हैं विच आर स्टैक्ड वन अबव द अदर जस्ट लाइक द क्वाइंस। जिस तरह से एक सिक्के आप रख दें और उसका एक ढेर बन जाता है, उसी तरह से ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं छोटे छोटे, और ये एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो अरेंज होते हैं लाइक द स्टैक। और इस पूरे स्टैक को हम नाम देते हैं ग्रैनम का। ठीक है, एक होगा तो हम उसको कहेंगे ग्रैनम, और ये बहुत सारे होंगे तो दीज आर कॉल्ड एज द ग्रैना। इस तरह से ये ग्रैना इसमें थ्रू आउट प्रेजेंट है, एंड दीज ग्रैना आर इंटरलिंक्ड विद द इंटरग्रैनम। ठीक है, ये जो है ग्रैना जो है ये सारे आपस में भी जो है वो ये इंटरलिंक्ड होते हैं। और एक जो है आप कह लें ग्रैनम के अंदर तकरीबन 52 थाइलाकाइड्स प्रेजेंट होते हैं, 50 तक, यानी काफ़ी ज़्यादा है, वन अबव द अदर, पूरा एक ढेर सा स्टैक वन अबव द अदर। और इस तरह फिर इसको हम ग्रैनम का नाम देते हैं। एंड दीज ग्रैनम अपीयर्स टू बी द ग्रीन, और एक्चुअली ये ग्रैनम ही होते हैं जो कि ग्रीन कलर के अपीयर होते हैं, क्योंकि इनमें जो थाइलाकाइड्स होते हैं या वो थाइलाकाइड्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक्चुअली वहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से इनका कलर जो है ग्रीन नज़र आता है। अगर माइक्रोस्कोप में हम देखें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ये हमें ग्रीन कलर का नज़र आता है, यहाँ पे क्लोरोफिल लोकेट करता है। और यहाँ पे ये ग्रीन पोर्शन होगा, ये ग्रीन पोर्शन, ये ग्रीन पोर्शन, एंड दीज ग्रीन पार्ट्स आर लिंक्ड बाय द नॉन ग्रीन इंटरग्रैनम। और ये दो ग्रैनम को जो कनेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं इंटरग्रैनम, और ये नॉन ग्रीन पोर्शन होगा, जबकि ये वाला पोर्शन जो है वो ग्रीन होता है। और ये ग्रैनम की ही एक्चुअली मेम्ब्रेन है जहाँ पे लाइट एनर्जी इज़ फिक्स्ड, लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप होती है या फिक्स होती है, और यहाँ पे एटीपी इज़ प्रोड्यूस्ड, और एटीपी भी यहाँ पे ही बनते हैं ग्रैनम की जो मेम्ब्रेन होती हैं वहाँ पे, यानी वो सारा प्रोसेस जो है वो भी इन्हीं मेम्ब्रेन्स पे ही ऑपरेट होता है। एज द क्लोरोप्लास्ट contain द स्मॉल अमाउंट ऑफ द DNA so that these are also considered as the सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज, तो इनको भी हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। तो ये प्लास्टिड की एक टाइप थी विच इज़ कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल दीज आर कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्ट। दूसरी दो टाइप्स के पिगमेंट्स हैं विच आर कॉल्ड एज द क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमा मीन कलर, तो क्रोमोप्लास्ट मीन भी, यानी ये भी ऐसे हैं कलर कंटेनिंग बॉडीज़, यानी या पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ विच हैव द कलर अदर दैन द ग्रीन। ग्रीन कलर के अलावा कोई और कलर के पिगमेंट्स जो हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर फाउंड इन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स एज वेल एज इन द फ्रूट्स। जो डिफरेंट फ्रूट की स्किन हमें डिफरेंट कलर की नज़र आती है, या पेटल्स वगैरह डिफरेंट कलर की नज़र आती हैं, दीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। दीज हेल्प इन द पॉलिनेशन, अट्रैक्शन का काम करते हैं, इस तरह से पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, और फ्रूट्स वगैरह को भी डिफरेंट कलर्स देते हैं। थर्ड टाइप के प्लास्टिड्स विच आर कॉल्ड एज द ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द कलरलेस, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। दे मे ऑफ द वेरियस शेप्स, मे बी द ट्रायंगुलर, मे बी द ट्यूबुलर और सम अदर शेप्स, एंड यूजुअली दीज आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आमतौर पे जो अंडरग्राउंड पार्ट्स ग्रो करते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, और इनमें तो कोई कलर वगैरह नहीं प्रेजेंट होते और ना ही ये कोई कलर देते हैं, बट दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ द फूड, के अंडरग्राउंड पार्ट्स में फूड की स्टोरेज में ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स विच आर प्रेजेंट अमंग द प्लांट्स। तो आज के लिए जो है मेरे ख्याल में ये इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट
टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।